बहुत एक्साइटेड हूँ। कभी नहीं जीवन में सोचा था कि मैं बिग बॉस में जाऊंगी। There was a time when I was called for Hindi also once, and even this time I was like, I laughed it out. No, I'm not made for Big Boss. Why do you think that you're not a material for Big Boss or you're not a person for Big Boss? Why? When it comes to shouting and creating drama, that doesn't come to me naturally. So in the meeting, I asked this that if you're looking something like that out of me, then I'm out of the game. If you're looking for somebody who is genuine, who is simple, who is relatable, then I'm definitely in. तो लगता है आप कंट्रोल कर पाएंगे बिकॉज सिचुएशन आपके हाथ में नहीं होगा। बाहर की दुनिया में तो आप अपने आप को एक वेंटिंग आउट, आपको बहुत वेज है। आप टीवी देख लो, आप म्यूजिक सुन लो, आप रील्स देख लो, आप अपने दोस्तों से बात कर लो, कहीं बाहर चले जाओ। यहाँ तो वही चार दीवारी है, वही चेहरे हैं जिनको देखना है, तो डिफिकल्ट होने वाला है। और मैं बहुत इमोशनल और सेंसिटिव पर्सन हूँ, तो वो तो निकल के आएगा ही। आप ये बताओ, गौरव खन्ना का आपने नाम लिया, और किसको किसको आप देखती हैं और इंस्पायर होती हैं? मुझे गौरव का गेम बहुत अच्छा लगा था, मुझे प्रणीत का गेम बहुत अच्छा लगा था। इट वाज वेरी जेन्युइन। आई फेल्ट गौरव की मुझे यही चीज पसंद आई थी कि वो इतना नाम कमाने के बावजूद भी उन्होंने बहुत ऑन द फेस नहीं दिखाया। पीछे एक स्लो गेम रहा उनका, बट कॉन्स्टेंट रहा और जेन्युइन लगा मुझे। सलमान के लिए लोग बोलते हैं, मैंने तो वोटों को देखा है कि भाई सलमान खान के साथ हमें स्टेज शेयर करना था, इसलिए हमको बिग बॉस में आना है। तो कभी ये वाला क्रेज नहीं आया? उनका जो एक रुतबा है, या उनसे ना डर लगता है कि अब क्या बता देंगे, क्या डांट देंगे वगैरह। रितेश जी के साथ थोड़ी रिलेटिविटी ज्यादा फील होती है, एक तो क्योंकि वो मराठी है। पवन सिंह काफी छाए हुए रहते हैं। हाँ जी बिल्कुल। उनका शो आपने देखा? कुछ एपिसोड देखे थे, फिर मुझे बोर हो गया। अच्छा, बोर हो गया। हाँ। ओके। सो बिग बॉस मराठी बहुत जल्द आपके सामने आने वाला है, और जब ये स्टार्ट होगा तब प्राजक्ता घर के अंदर होंगी, यानी कि जब हम ये इंटरव्यू दिखा रहे होंगे तो प्राजक्ता वहाँ पे कुछ कर रही होंगी। बट उससे पहले हमारे पास आ गई है ढेर सारी बातें करने के लिए, तो मिनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। How's going? How's life? It's like few days. Yeah, hectic. Hectic? Too much to plan, too much to shop, and it's tiring. The shop part is very important because you have to look good and styling. Yes. So please tell me what is happening on that note. So I got very few days to plan things and to shop and everything, because I don't stay here. I stay in Gurgaon now for my production house and studio. तो मैं 3-4 दिन पहले ही आई हूँ. So for my team also it's like इतने से टाइम में सब करना है. They are not sleeping. They are working day and night for me. So it's nice. It's exciting. तबीयत का भी थोड़ा ख्याल रखना पड़ रहा है, क्योंकि एक साथ में इतना सब करने से थोड़ा एक्सर्शन हो जाता है। पर बाकी बहुत एक्साइटेड हूँ। हालांकि कभी नहीं जीवन में सोचा था कि मैं बिग बॉस में जाऊंगी। Never ever I thought I will be part of this. Always anybody if they would ask me ki what will you do if you if somebody calls you. There was a time when I was called for Hindi also once, like asked for, not called for. And even this time I was like, I laughed it out ki no, I'm not made for Big Boss. But only after the first meeting I thought ki maybe I can. Why not? Why not? But why do you think that you're not material for Big Boss or you're not a person for Big Boss? Why? Because from what I have observed in the past, though since few years it has been changed, the narrative has been changed, but what I have observed is people who are very dramatic, who are very loud, shout easily and all that, they are more visible. It's easier for them is what has been portrayed earlier. But this time when I had a meet, and even the season before this when I saw Abhijit season, even the Hindi season, Gaurav, I really loved their journeys, and I'm somebody who can relate to that kind of a journey, who are saying their things in a very dignified way, who are making a place in a very dignified way, putting good boundaries. And that's what I am also. I like to create good boundaries. At the same time, I'm also opinionated. I like to express my opinions. But when it comes to shouting and creating drama, that doesn't come to me naturally. So in the meeting, I asked this that if you're looking something like that out of me, then I'm out of the game. If you're looking for somebody who is genuine, who is simple, who is relatable, then I'm definitely in. And they told me that especially the Marathi Big Boss, the more importance is on emotions, human emotions, the connect on, मानुस की हम मराठी में बोलते हैं. So, and we see that very well in you. So we want to definitely showcase that kind of a person on our show. So then I said, yes, चलो करते हैं. तो ये इमोशंस हैं,
कहीं ना कहीं जाते हैं तो निकल ही जाते हैं, आप कितना भी कंट्रोल करोगे ना हो ही जाता है। और बिल्कुल। फाइट क्या होता है कि चलो हम नॉर्मल लाइफ में, बिग बॉस की लाइफ नॉर्मल नहीं होती नहीं होती, वो कॉम्प्रेस्ड होती है, नॉर्मल लाइफ का एक कॉम्प्रेस्ड वर्जन है। यस, तो लगता है आप कंट्रोल कर पाएंगे, बिकॉज सिचुएशन आपके हाथ में नहीं होगा। आप यहाँ पे हंस खेल रही हैं, यहाँ पे मूड खराब हुआ तो आपने कॉफी पी ली, बाहर चली गई, बिल्कुल कुछ भी कर लिया, बट वहां पे तो ये सब नहीं होता है, पॉसिबिलिटीज मुझे नहीं पता है। है, बहुत डिफिकल्ट है। कैसे होगा? और व्यूअर्स के लिए तो बहुत एंटरटेनिंग होता है, क्योंकि हाँ। उनको तो सब दिख रहा होता है ना, हम्म। कौन किसके बारे में क्या बोल रहा है। बाहर रहते हुए लोगों को पता ही नहीं होता है कि आपके पीठ पीछे क्या बोला जा रहा है, क्या आपको किस तरह पोर्ट्रे किया जा रहा है। तो इट्स नॉट इजी, आई नो इट्स वेरी चैलेंजिंग। और लाइक यू सेड कि बाहर की दुनिया में तो आप अपने आप को एक वेंटिंग आउट, आपको बहुत वेज है। आप टीवी देख लो, आप म्यूजिक सुन लो, आप रील्स देख लो, आप अपने दोस्तों से बात कर लो, कहीं बाहर चले जाओ। यहाँ तो वही चार दीवारी है, वही चेहरे हैं जिनको देखना है, सहन करना है। तो डिफिकल्ट होने वाला है। और मैं बहुत इमोशनल और सेंसिटिव पर्सन हूँ, तो वो तो निकल के आएगा ही, आई नो। एंड आई डोंट थिंक आई शुड बी अफ्रेड अबाउट दैट, बिकॉज that is something very natural as a human. Correct. To feel what you feel, and Big Boss is about expressing what you feel. So yeah, naturally I will do that. अपनी इतनी लंबी जर्नी तय की है अकेले के दम पे, डरने वाली कौन सी बात है? डरने का नहीं है कि नहीं? डरने का बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल नहीं। सो आप ये बताओ, गौरव खन्ना का आपने नाम लिया, और किसको किसको आप देखती हैं और इंस्पायर होती हैं कि ओके अगर ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं? अभिजीत सावंत, ओके। उसने मुझे इस सीजन से, अभिजीत के बारे में ऑफ कोर्स हम बात करेंगे, बट इस सीजन से, अगर हिंदी वाले सीजन जी से, जी, मुझे गौरव का गेम बहुत अच्छा लगा था, मुझे प्रणीत का गेम बहुत अच्छा लगा था। Okay. He was very genuine, I felt. और कौन कौन था एक मुझे याद करने दो, क्योंकि मिक्स हो रहा है मेरे दिमाग में। मैंने एक्चुअली जो टॉप 5 सोचे थे वही टॉप 5 आए हैं हिंदी में, जो मैंने अपने दोस्त को बताया था कि मेरे हिसाब से ये टॉप 5 होने चाहिए। तो मुझे उन सबका ही गेम जो टॉप 5 में आए मुझे पसंद आया था। और गौरव की मुझे यही चीज पसंद आई थी कि वो इतना नाम कमाने के बावजूद भी उन्होंने बहुत ऑन द फेस नहीं दिखाया। एक पीछे एक स्लो गेम रहा उनका, बट कांस्टेंट रहा और जेन्युइन लगा मुझे। बहुत लोगों को ऐसा लगा कि ही इज नॉट एक्सप्रेसिंग व्हाट ही इज एंड ऑल दैट। आई फील ही इज लाइक दैट, ही इज अ डिग्निफाइड पर्सन, सो व्हाई विल ही शाउट? सो आई रियली लाइक्ड एंड आई वाज रूटिंग फॉर हिम। ओके, वाह, जिसके लिए आप रूट कर रही थी उसके हाथ में ट्रॉफी भी आ गई। एंड आई एम श्योर कि गौरव भी आपका ये इंटरव्यू देखेंगे और जब आप घर में होंगे तो वो आपके लिए रूट करेंगे। जी, थैंक यू सो मच। ओके, स्टाइलिंग की बात हो रही है तो तानिया मित्तल को हम भूल नहीं सकते। ओके, आपने उनको देखा और क्या आपकी स्टाइलिंग होने वाली, स्पेशली आपने शॉपिंग तो चलिए एक लिमिटेड टाइम के साथ आपने कर ली है, बट बिग बॉस पे निगाहें जो रहती है ना वो सिर्फ क्या पहनने वाले हैं, कैसे दिखने वाले हैं, मेकअप, आपके लिप्स, आपकी आईज, आईब्रोज कितने बने हैं, नहीं बने हैं, कानों में क्या बने, एवरीथिंग इज विजिबल। करेक्ट। और काफी चैलेंजिंग है, क्योंकि मैं घर पे बहुत सिंपल रहना पसंद करती हूँ। मुझे जिस दिन काम नहीं होता है, मेकअप नहीं करना होता है, मुझे बहुत खुशी मिलती है। और बिग बॉस में वैसा करना अलाउड नहीं होगा। पीपल आर वॉचिंग एंड दे वांट टू सी यू एट योर बेस्ट, एंड आई एम गोइंग टू डू दैट, आई एम गोइंग टू पुट दैट एफर्ट्स फॉर देम। क्योंकि कोई क्यों देखेगा फिर आपको, क्यों आप बिग बॉस में गए हो ना, आपको वो अच्छी तरह से देखना चाह रहे हैं, तो आई एम रेडी फॉर दैट। और किस तरह की स्टाइलिंग होगी, मेरा मिक्स ऑफ जैसे मैं रहती हूँ, कभी कभी मैं वेस्टर्न पहनती हूँ, मतलब ऐसा नहीं कि मैं बहुत रिवीलिंग क्लोथ्स कभी मैंने पहने ही नहीं है, तो वो नहीं होने वाला है। बट नाइस क्लासी स्टाइलिश क्लोथ्स आई एम गोइंग टू वेयर, समटाइम्स मे बी साड़ीज, समटाइम्स मेरे को साड़ी पहनना नहीं आता है, तो मैं रेडी टू वेयर साड़ीज ही पहनने वाली हूँ। कोई वहां मुझे मिल जाए जो मुझे पहना सके, तो आई वुड लव टू, आई विल बी कैरिंग मेरी मम्मी की साड़ियाँ कुछ, तो कोई मुझे पहना देगा तो मैं वो पहनूंगी। और कुछ इस तरह के कपड़े रहेंगे, कुछ कभी डेनिम्स रहेंगे। सो या मम्मी की साड़ियाँ बहुत अच्छी रहेंगी, आई एम श्योर, बिना देखे मैं बता सकती हूँ। यस, उनका बहुत प्यारा कलेक्शन है। और उनके पास जनरली वो मराठी, ठेठ, जरवाली, पैठणी, ये सब साड़ियाँ हैं। वाह, तो पूरे कल्चर को आप रिप्रेजेंट करने वाली। नाइस। तो रितेश वर्सेस सलमान, अगर मैं बोलूँ कि आपको हिंदी के भी ऑफर्स आए थे, बात हुई थी, जो भी कॉल आया हो, और रितेश अभी इसमें सलमान के लिए लोग बोलते हैं ना, मैंने तो बहुतों को देखा है कि भाई सलमान खान के साथ हमें स्टेज शेयर करना था, इसलिए हमको बिग बॉस में आना है। तो कभी ये वाला क्रेज नहीं आया? बिल्कुल आया। ही इज एब्सोल्युटली बेस्ट एंकर्स ऑफ बिग बॉस, दैट्स व्हाई ही इज होस्टिंग ऑल द सीजन्स। और उनका जो एक रुतबा है, या उनसे ना डर लगता है कि कब क्या बता देंगे, क्या डांट देंगे वगैरह। रितेश जी के साथ थोड़ी रिलेटिविटी ज्यादा फील होती है, एक तो क्योंकि वो मराठी है, और ना उनका एक वार्मथ कम अक्रॉस बहुत अच्छे से होता है। उनकी मूवीज भी देखी है, मतलब आई एम नॉट कंपेयरिंग एनीबडी, बोथ आर, मतलब सलमान खान से किसी को कंपेयर किया ही नहीं जा सकता, मुझे लगता है वो एकमात्र है।
जी। वैसे ही रितेश जी भी, मुझे लगता है कि मराठी बिग बॉस के लिए इनसे अच्छी चॉइस नहीं हो सकती थी, क्योंकि अपना एक बड़े भाई जैसा उनका एक आभा आता है कि घर का कोई बड़ा आपको समझाए तो किस तरह समझाएगा। और उनकी और जेनिलिया की जोड़ी मुझे बहुत पसंद है। मैं कभी नहीं मिली उनसे, ना कभी उनको सामने से देखा है, पर जो भी उनकी रील्स वगैरह मैं देखती हूँ, मैं उन पे जरूर कमेंट करती हूँ कि आई अडोर यू, आई लव यू बोथ, एक फैन की तरह। आई अच्छा। लव देयर देम एज अ कपल। तो फिर जो स्टेज पे आप फर्स्ट टाइम जाएंगी तो वो फैन वाली फीलिंग हमें दिखेगी? हाँ बिल्कुल दिखेगी, क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उनको मिलने के लिए। और मैं उनको ये भी बोलने वाली कि कभी शो के बाद प्लीज मुझे जेनिलिया से भी मिला दीजिएगा, क्योंकि मुझे वो बहुत पसंद है। अच्छा, तो कुछ प्रेप हुआ है, लाइक कुछ परफॉर्मेंस वगैरह, दो ओपनिंग एक्ट वगैरह? प्रेप चल रहा है और उसका शूट अभी बस होने ही वाला है। गाना डिसाइड हो गया है, तो देखते हैं अभी कैसा होता है। अच्छा, हमें छोटी सी प्राजक्ता दिखती थी, तो इतनी बड़ी हो गई, इतनी शानदार। मतलब होता है ना कि एक जब आते हैं तो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं जो परफॉर्म करते हैं और धीरे धीरे अपना दिल जीतते जाते हैं पूरी दुनिया का, और आपने वो कर दिखाया। सो हाउ इज योर जर्नी टिल डेट? बहुत प्यारी रही है, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग दैट गॉड हैज गिवन मी। और NNL की वजह से ही एक चेहरे को, नाम को एक जगह मिली इस शहर में, इस देश में, आई वुड से इवन दुनिया में। मतलब जो जो भी इंडियंस हैं जिन्होंने भी NNL देखा है, जो प्राउड फील करते हैं बीइंग इंडियन, तो बहुत बड़ा वो प्लेटफॉर्म था। और बहुत खुशी होती कि आज भी इतने सालों बाद भी लोगों को छोटी छोटी चीजें याद है हमारे बारे में, कि तुम ऐसी थी और तुमने ये गाया था और तुमको ऐसा हो गया था। वो जान के बहुत खुशी होती है। और ये एक्चुअली बहुत ब्लेसिंग के साथ ही ये जगह मिल पाती है लोगों को, कि इतने सालों बाद भी लोग आपको याद रखें। तो जर्नी बहुत खूबसूरत रही है, बहुत दिग्गजों के साथ रहकर उनके साथ सीखने मिला, एंड एब्सोल्युटली ग्रेटफुल फॉर दैट। Now tell me about अभिजीत सावंत, how's your bond with him and everything? Like कि आपने बोला कि उनको भी देखकर आप इंस्पायर हुई हैं। जी, बहुत अच्छा बॉन्ड है, क्योंकि हमने NNL की जर्नी साथ में शुरू की थी, और इतने साल से हम जानते हैं एक दूसरे को, शोज किए हैं, बहुत बैक स्टेज हमारी बातें होती। जब वो अपना बिग बॉस से बाहर आया था, तब भी मैंने उससे मिलके बहुत सवाल किए थे कि हाँ फिर ऐसा, फिर वैसा, फिर तुझे कैसा फील हुआ, फिर क्या होता है, सब मैंने उससे पूछा था, और उसने बहुत अच्छे से मुझे जवाब दिए थे। और उसने ये बोला था कि ये ना, इन अ वे मैंने अपने आप को फिर से जाना है, नए तरह से जाना है बिग बॉस में जाके। और उसने मुझे टिप्स भी यही दिए कि तू जैसी है वैसी ही रह। और बस उसने मुझे ये बोला कि बहुत बात जरूर करना, शांत मत बैठे रहना जैसे तू है जनरली, अदरवाइज कि भाई ऑब्जर्व करती हूँ, ये विजिबिलिटी इम्पोर्टेंट है। हाँ, क्योंकि ओपिनियन देना बहुत जरूरी है। वो 1 घंटे में आप दिखने चाहिए कि आप क्या सोचते हो। डजंट मीन कि आप उसके लिए जानबूझ के कुछ तमाशे करो, क्योंकि वो मेरे में नेचुरली नहीं है, ना अभिजीत की वैसी पर्सनालिटी है। पर उसने मुझे वही बोला कि शांत मत बैठे रहना, क्योंकि वो 3 महीने ही वो एक कॉम्प्रेस्ड लाइफ है, उसको उसी तरह लो कि एक दिन में बहुत कुछ होगा। ऐसा मत सोचो कि यार ऐसे कैसे कर सकता है ये, अभी तो चिल्लाया था, अभी अब खुशी से बात कर रहा है, वैसा ही होगा वहां पे, एंड यू हैव टू एडजस्ट विद दैट। सो दैट काइंड ऑफ थिंग्स ही हैज टोल्ड मी, and I'm definitely looking forward to meet different kind of personalities, how they react, how they poke me, what they poke me, what they take out of me and all that. I'll definitely discover a new shade of me for sure. Anything you want to keep it secret, you're not going to reveal, like, you know, is there anything in your life? I'm generally a private person, definitely. I'm introvert and private person. So बहुत अपनी personal बातें मैं नहीं ही करने वाली हूँ, because I definitely in these 20 years I've learned all shades of media also, good, bad, ugly. So keeping that in mind, that this show is going to be there forever, है ना? So I'm going to be careful about it. It's not necessary to tell everything about yourself. You don't tell that to your people also. Sometimes you want to keep certain things for yourself, for your journey, for your betterment, and that's how it's going to be. But in the game, in the house, whatever happens, that is going to be very genuine and real. I'm not going to hide what I feel about the people in that house, or if I feel that something is wrong, I'm going to talk about it. So yeah. Okay. एक बिग बॉस घर के अंदर चलता है और एक बिग बॉस चलता है घर के बाहर, जो होते हैं फैंस जी, और बड़ी लड़ाइयाँ होती हैं सोशल मीडिया पर। जी जी, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? एंड हाउ डू यू सी दीस लाइक टू बिग बॉस गोइंग साइमल्टेनियसली? करेक्ट, देखा है मैंने, ऑब्जर्व किया एज अ व्यूअर भी कि कैसे लोगों के बारे में लोग ओपिनियन बनाते हैं और ट्रोल करते हैं या पसंद करते हैं। मुझे लगता है कि जो पसंद करते हैं उनके लिए ऑब्वियसली किसेस पहले से ही दिल से, जो ट्रोल करने वाले हैं आई डोंट केयर, क्योंकि केयर करके कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आई थिंक
their opinions is their opinion. What is important for me is my people, my family, my friends. They know what I am. I know what I am, and that's most important. ओके नाइस। बिग बॉस में कोई ऐसा कंटेस्टेंट जो आपको पर्सनली सही नहीं लगा हो और उसके हाथ में ट्रॉफी आई हो? मैंने बहुत सीजन्स एक्चुअली देखे नहीं है, तो इस सवाल का जवाब देना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। जो भी मैंने सीजन्स देखे, मुझे अभिजीत चाहिए था ऑनेस्टली कि वो विनर हो। अच्छा, ओके। वो मुझे पूरा विनर मटेरियल दिख रहा था, बट वो नहीं जीत पाया। हालांकि सूरज के लिए भी मेरे पास एम्पैथी बहुत थी कि आई एम वेरी हैप्पी कि वो जीता, और अभिजीत भी बहुत खुश था कि वो जीता, क्योंकि वो जिस बैकग्राउंड से आता है उसके लिए वो अमाउंट, उसके लिए वो ट्रॉफी बहुत इंपॉर्टेंट थी। पर एज अ गेम शो व्हेन आई सी, तो आई फेल्ट कि यार अभिजीत शुड हैव वन द शो। ओके। अच्छा, ये जो ट्रॉफी होती है फाइनल, अगर मैं इंडियन आइडल की बात करूँ या किसी भी गेम शो की बात करूँ, डू यू थिंक ट्रॉफी मैटर करती है? लाइक इंडियन आइडल की ट्रॉफी आपको नहीं मिली थी, राहुल को नहीं मिली थी, नहीं, बट फिर भी आप लोग कितना कमाल कर रहे हैं जी। उसके लिए ट्रॉफी की जरूरत नहीं पड़ी। तो हाउ डू यू सी दैट कि ट्रॉफी जरूरी होती है वो एक आई से मार्क लगाने के लिए कि ओके आई एम द विनर एंड आई विल गेट मोर एंड मोर प्रोजेक्ट, या टैलेंट भी मैटर करता है? उस मोमेंट के तो ट्रॉफी सबकी ही नजर होती है यार, मतलब कोई भी वहां पे ऐसे ही थोड़ी जाता है, जीतने के लिए ही जाता है। हाँ, वो तो इच्छा से ही जाता है, और मैटर करती है, डेफिनेटली करती है कि आप विनर हो उस शो के। बट इन अ लॉन्ग जर्नी व्हेन वी सी एज अ बर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू, इट डजंट मैटर सो मच। आपकी जर्नी ज्यादा मैटर करती है, उसके बाद आपने क्या किया है, उसके बाद आपने अपने आप पे कितना काम किया है, कितना आप ग्रो हुए हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। yes. ओके। और भी बहुत सारे आपने काम किए हैं, प्लीज बताइए। वेदा एंड मेनी फिल्म्स, व्हिच वन इज योर फेवरेट? बहुत सारी ही अपॉर्चुनिटीज जो मुझे मिली हैं, उन सब के लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। और रिसेंटली अनुराग सर के मूवी में मुझे गाने का मौका मिला, विच इज़ अ बिग डील फॉर मी, बिकॉज आई हैव रियली अडोर्ड हिम एंड रिस्पेक्टेड हिम ऑलवेज एज अ क्रिएटर, हिज क्राफ्टमैनशिप, हिज डायरेक्टर, द वे ही डायरेक्ट्स द थिंग्स एंड रॉनेस जो उनकी मूवीज में निकल के आता है। और ज्यादा मुझे समझने की क्षमता डेवलप हुई मेरे भाई की वजह से, क्योंकि वो एक राइटर है और उसने मुझे वो बारीकियां समझने में बहुत हेल्प की कि इस कैरेक्टर की लेयर्स जिस तरह लिखी। और अनुराग सर डायरेक्टर होने से पहले राइटर है, तो इसलिए उनका वो जो एक डिटेल्ड व्यू आता है ना कैरेक्टर का, वो बड़ा मजा आता है देखने में। और उनकी मूवी का मैं पार्ट हूँ, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। और मेरे दोस्त मनन के गाने हैं, इस बात की मुझे बहुत खुशी है कि उसके गाने को मिले मुझे। और दोनों ही बहुत अलग कलर के गाने हैं, एक लोरी है और एक आइटम सॉन्ग है, वो भी भोजपुरी में। तो बड़ा मजेदार था। अच्छा, पवन सिंह काफी छाए हुए रहते हैं। हाँ जी बिल्कुल। उनका शो आपने देखा, राइजन पावर? हाँ, थोड़ा सा देखा था, कुछ एपिसोड्स देखे थे, फिर मुझे बोर हो गया। अच्छा, बोर हो गया? हाँ, ओके। मतलब मैंने आई थिंक उनके जाने तक देखा, उसके बाद भी 1-2 एपिसोड्स देखे होंगे। अच्छा, जब आप कोई गाना गाते हैं, कंपोज करते हैं, तो ध्यान में कोई अगर बड़ा एक्टर का नाम आता है तो वो ज्यादा एक्साइटिंग रहता है, या आपके लिए कोई भी गाना ही होता है? नहीं यार, वो ऐड करता है। अगर आपको पता चले कि किस पे पिक्चराइज होने वाला है, तो डेफिनेटली एक्साइटमेंट होता है, या कौन सी मूवी में आने वाला है, कौन डायरेक्टर, ये सारी चीजें डेफिनेटली मैटर करती है। पर गाना इटसेल्फ भी अगर जब बहुत खूबसूरत सी कॉम्पोजिशन आपको मिले ना गाने के लिए, तो उसमें भी बहुत खुशी मिलती है कि हाँ यार, इसको मैं न्याय दे पाऊंगी शायद, या ये मेरी आवाज में, या जैसे फॉर एग्जाम्पल भोजपुरी आइटम सॉन्ग मैंने कभी नहीं गाया था, वो गा के भी मुझे बड़ा मजा है कि अच्छा यार, इसमें भी मेरी आवाज अच्छी ही लग रही है, मजेदार लग रही है। एंड क्रेडिट गोज टू मनन कि उसने मुझसे इस तरह से वो कैरेक्टर निकलवाया गाने में। तो हर गाना आपको अपने आप में भी एक शेड छोड़ के जाता है, आप में भी आप डिस्कवर करते हो अपने आप को कि मेरे में ये भी है। सो यस, एवरी सॉन्ग इज डेफिनेटली एडिंग समथिंग टू योर लाइफ। तो अब बताइए, वो पहला एक्टर कौन था जिसके बारे में जब आपको पता चला कि ओ ये वाला एक्टर है, यू आर लाइक जंप की? मुझे बहुत मजा आया था जानकर कि मैं कंगना रनावत की आवाज बनने वाली हूँ। मणिकर्णिका में मेरा जो पोर्शन है वो कंगना पे पिक्चराइज है। उसके बाद मुझे एक और मौका मिला उनके लिए गाने का, थलाईवी में। तो मुझे वो एज एन एक्टर बहुत पसंद है। वो बहुत रियल, बहुत नेचुरल, कैमरा के सामने ऐसा लगता है कि वो कंगना नहीं है, वो कैरेक्टर है। तो मुझे एज एन एक्टर एंड हर क्राफ्ट मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, कौन सा टैलेंट आपका बचा हुआ है जो हमने अब तक नहीं देखा है, जो आपको करना है? अच्छा, पता नहीं, ऐसा तो मेरा टैलेंट मैं धीरे धीरे ग्रूम कर रही थी, बट अब मैंने बहुत दिनों से नहीं किया। मैं अपने नम्यो स्टूडियोज के लिए आर्टिस्ट के वीडियोस डायरेक्ट कर रही थी और उसमें मुझे बड़ा मजा आ रहा था। अच्छा।
working behind the camera. Composition is also something that I just did ऐसे ही अपने लिए कोई गाना बना दिया, but composing with somebody else, उनको किस तरह का गाना चाहिए, वो सेट कर पाना, वो मेरे लिए काफी मजेदार रहा है. मैंने रिसेंटली अपना एक बच्चों का चैनल शुरू किया है, बच्चों के हिंदी राइम्स का. अच्छा. मुझे लगता है कि इंग्लिश राइम्स के बहुत चैनल्स हैं जो बच्चों को दिखाए जाते हैं, बट शुद्ध हिंदी, जैसे कि फॉर एग्जांपल डक वाला ना, क्वैक क्वैक क्वैक, तो वो इंग्लिश में ही सिखाया जाता है. हाँ. क्यों नहीं हिंदी में? तो मैंने हिंदी में अपना एक गाना बनाया, खुद लिखा, कंपोज किया. तो मैं वो बच्चों के चैनल पे काम कर रही हूँ, जो करने में मुझे बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि मैं छोटे बच्चों जैसे आवाज बना के गाती हूँ और इमेजिन करती हूँ. और मेरे 2 नेफ्यूज हैं छोटे छोटे, तो पहली ऑडियंस मेरी वही हुआ करती थी. अब थोड़े बड़े हो गए, 5 साल के हो गए. फिर मेरे दोस्त का बच्चा है, माधवन नाम है, उसको 2 साल का है. तो अब वो मेरी ऑडियंस है, उसको मैं सुनाती हूँ, उसका रिएक्शन देखती हूँ. तो इस तरह से अलग अलग चीजें मैं ट्राई करती रहती हूँ. नाइस. एक्टिंग है वो? एक्टिंग के मुझे बहुत ऑफर्स पहले भी आए थे. एक्टिंग बहुत मुश्किल चीज है, because you have all the qualities, you have beautiful face, everything you have. बट एक्टिंग भी तो चाहिए. गानों में लिप सिंक करना मुझसे हो जाता है, क्योंकि इतने साल किया है, पर वो इंटेंसली उस रोल को एक्सप्रेस करना, मे बी इफ आई गेट एटमॉस्फेयर जहाँ मुझे थोड़ी ट्रेनिंग दी जाए, उस कैरेक्टर के बारे में मुझे समझाया जाए और बहुत बार मैं उसको प्रैक्टिस करूँ, तो मे बी आ जाएगा. कोई अच्छे डायरेक्टर अगर मुझसे वो निकलवा पाए तो डेफिनेटली आ जाएगा. पर इसके पहले जब भी ऑफर्स आए, मैंने इनफैक्ट ट्राई भी किया था. जब मैं सोनी में थी तो एक रिहाई करके सीरियल आता, अरे मुझे बोलना नहीं चाहिए था, अब तो बोल दिया. नहीं है, वो है ही नहीं कहीं यूट्यूब पे. इट्स सो ग्रेट. ठीक है, ढूंढ नहीं पाएंगे, बट बोल तो दिया ना. तो उसमें मैंने एक्टिंग की थी, और मेरा भाई तो बहुत हंसा था मुझे देखकर कि क्या, मतलब मुझे कैमरे के सामने ना ऐसा एक यहाँ पे और यहाँ पे एक छोटी सी स्माइल आती है ना, वो आती ही रहती थी, इवन इन द सीरियस सीन्स. तो वो देख के मेरा भाई बहुत हंसा था. बहुत डिफिकल्ट एक्टिंग, मैंने उस टाइम समझा. इनफैक्ट मैंने स्क्रीन टेस्ट भी दिए थे 1-2 शोज के लिए. तो वो उस वक्त मुझे सीन दिया था कि अभी यहाँ पे खून हो गया है, यहाँ पे वो बॉडी गिरी हुई है और आपको उस पर रिएक्ट करना है. तो अभी यहाँ पे तो वो है ही नहीं ना, मैं कैसे रिएक्ट करूँ? तो आई सल्यूट ऑल द एक्टर्स, स्पेशली द पीपल दैट आई अडोर, कि इरफान खान सर फॉर एग्जाम्पल, ऐसा लगता ही नहीं था वो एक्टिंग कर रहे, वो कैसे करते थे, आई डोंट नो. बहुत नेचुरल, मतलब सल्यूट टू देम डेफिनेटली. तो देखेंगे, कोई अच्छे से ट्रेन करके अगर मुझसे निकलवा पाए तो व्हाई नॉट. कभी किसी ने आपको बोला है कि आप श्रेया घोषाल से थोड़ी सी मैच करती हैं? बिल्कुल बोला है. मेरी स्माइल के लिए स्पेशली बोला है कि आपकी स्माइल और उनकी स्माइल बहुत रिजेंबल करती है. आवाज के टेक्सचर्स भी हमारे सेम फैमिली के बात करने का स्टाइल. हाँ जी, है ना, मुझे बोला है. तो ये क्या होता है जब किसी से ऐसे कंपेयर करते हैं, अच्छा लगता है या बुरा लगता है? अच्छे लोगों से कंपेयर करते हैं तो अच्छा ही लगता है यार. शी इज सच अ ब्यूटीफुल पर्सन, such a sweet person and such incredible artist and singer. तो उनके साथ कंपेयर कर रहे हैं, मतलब मैं भी कुछ अच्छा ही कर रही हूँ, मुझे ऐसा ही फील होता है. वाओ, नाइस. कुछ गोल है लाइफ में कि मुझे किसके जैसा बनना है या क्या करना है? चलिए, किसके जैसा नहीं, बट अपनी क्या मुकाम हासिल करना मुझे ज्यादा से ज्यादा म्यूजिक रिलीज करना है. डेफिनेटली मैं बहुत स्लो रही हूँ इसमें, मुझे ऐसा फील होता है. इफ आई सी or talk from my critical side, I feel I could have been doing much more releases in terms of music. वो मुझे बहुत करना है. और एक आर्टिस्ट की तरह मुझे अपने आप को हमेशा ग्रो करते रहना है. राइटिंग मुझे पसंद है, जिसपे मैं ज्यादा टाइम देती नहीं हूँ, आलस की वजह से, प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह से. तो वो थोड़ा डिसिप्लिन अगर मेरे में आ जाए तो मैं बड़े अच्छे काम कर सकती हूँ. तो और बिग बॉस से जब निकलेंगे तो मुझे लगता है एक नई पर्सनालिटी हमें देखने को मिलेगी. यस, डेफिनेटली. बिग बॉस में एक चीज डेफिनेटली सुधरने वाली हूँ कि मैं टाइम से सोना ही पड़ेगा, जो मैं नहीं सोती हूँ. 3-4 बजे से पहले मैं सोती ही नहीं हूँ, आदत ही बनी हुई है. तो सुबह उठती कितने बजे? 11. अच्छा, मतलब कंप्लीट स्लीप होता है? हाँ, स्लीप तो कंप्लीट चाहिए यार. आई लव स्लीपिंग. मैं 12 घंटे भी सो सकती हूँ, ऐसा मतलब कितना भी सुला लो मुझे. दैट्स अ वेरी ग्रेट थिंग दैट you're getting 12 hours or 8 hours. Yes, 8 hours तो minimum I make sure कि हाँ. But there are times कि जब travel बहुत होता है, shows होते हैं back to back, तो नहीं मिल, फिर 1-1 घंटे की नैप, पावर नैप ले लो, फ्लाइट में 1 घंटा सो जाओ, गाड़ी में 1 घंटा सो जाओ, वैसा करना पड़ता है. उसकी भी आदत है. तो बिग बॉस में डेफिनेटली रूटीन मेरा सुधर जाएगा. जो कोई सुधार नहीं पाया वो बिग बॉस सुधार देंगे. सुबह उठना ही पड़ेगा. तो या दैट डेफिनेटली विल ऐड. अच्छा, इतने दिनों में जो बिग बॉस के हाउस में रहेंगे, कितने प्रोजेक्ट्स होल्ड पे हैं? काफी कुछ हमने शोज छोड़े हैं. हमारे इतनी सारे शोज की क्वेरीज थी, हमने नहीं लिए जब हमने बिग बॉस को हाँ बोला. मेरा स्टूडियो वर्क
बहुत सारा है जो होल्ड पे रहेगा। हालांकि मैं पूरी कोशिश करके आई हूँ कि 3 महीने का स्टॉक बना के आऊँ गानों को लेकर, या दूसरे लोगों के लिए हमने गाने जो बनाए वो रिलीज होंगे। गाना फॉर एग्जाम्पल रेडी हो चुका है ऑलमोस्ट। मेरा जो चैनल है कोको कर्डल्स, उसका भी मैं 3 महीने का पूरा तैयारी करके आई हूँ, अच्छा, राइम्स एंड स्टोरीज एंड एवरीथिंग। तो इतना हैम्पर नहीं हुआ, सिंसियरली मैंने किया है ये काम। नाइस प्रोजेक्ट है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात थैंक यू करके। सो मच। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जब शो में जाएंगी तो अपनी आवाज से सबको एकदम मंत्रमुग्ध करते हैं ना। थैंक यू जी। एक आखिरी सवाल और पूछ लेते हाँ हैं। जी बिल्कुल। ये हम लोगों का ना बड़ा रहता है कि आइसक्रीम ना खाओ, ठंडा ना पियो तो गला खराब हो जाएगा, जी, मत जी, खाओ मत जी। खाओ। आप इन सब चीजों का ध्यान रखती है और क्या सच में होता है ऐसा? जब गला खराब है तब ध्यान रखती हूँ। हाँ। कि ऑलरेडी अभी थोड़ा जैसे मुझे चल रहा है थोड़ा इन्फेक्शन, तो मैं ना पी, फिर भी इच्छा होती रहती है कि एक कोल्ड कॉफी पी लूं ना, हाँ। तब मैं थोड़ा ध्यान रखती हूँ। अदरवाइज मैं सब खाती हूँ, सब पीती हूँ, और भगवान की दया से कुछ नहीं होता है। दैट्स अ ग्रेस आई फील। यस, That's nice. Thank you so much थैंक and all यू, the very थैंक best. यू सो मच। Thank you.